Psalm 104. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great. Thou art clothed with honor and majesty, who coverest thyself with light as with a garment, who stretchest out the heavens like a curtain, who layeth the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind, who maketh his angels spirits, his ministers a flaming fire, who laid the foundations of the earth, that it should not be removed forever. Thou coveredst it with the deep as with a garment. The waters stood above the mountains. At thy rebuke they fled. At the voice of thy thunder they hasted away. They go up by the mountains. They go down by the valleys unto the place which thou hast founded for them. Thou hast set a bound that they may not pass over, that they turn not again to cover the earth. He sendeth the springs into the valleys, which run among the hills. They give drink to every beast of the field. The wild asses quench their thirst. By them shall the fowls of the heavens have their habitation, which sing among the branches. He watereth the hills from his chambers. The earth is satisfied with the fruit of thy works. He causeth the grass to grow for the cattle, an herb for the service of man, that he may bring forth food out of the earth, and wine that maketh glad the heart of man, and oil to make his face to shine, and bread which strengtheneth man's heart. The trees of the Lord are full of sap, the cedars of Lebanon which he hath planted, where the birds make their nests. As for the stork, the fir trees are her house. The high hills are a refuge for the wild goats, and the rocks for the conies. He appointed the moon for seasons. The sun knoweth his going down. Thou makest darkness, and it is night, wherein all the beasts of the forest do creep forth. The young lions roar after their prey, and seek their meat from God. The sun ariseth, they gather themselves together, and lay them down in their dens. Man goeth forth unto his work, and to his labor until the evening. O Lord, how manifold are thy works! In wisdom hast thou made them all. The earth is full of thy riches. So is this great and wide sea, wherein are things creeping innumerable, both small and great beasts. There go the ships. There is that Leviathan whom thou hast made to play therein. These wait all upon thee, that thou mayest give them their meat in due season. That thou givest them, they gather. Thou openest thine hand, they are filled with good. Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die and return to their dust. Thou sendest forth thy spirit, they are created, and thou renewest the face of the earth. The glory of the Lord shall endure forever. The Lord shall rejoice in his works. He looketh on the earth, and it trembleth. He toucheth the hills, and they smoke. I will sing unto the Lord as long as I live. I will sing praise to my God while I have my being. My meditation of him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Let the sinners be consumed out of the earth, and let the wicked be no more. Bless thou the Lord, O my soul. Praise ye the Lord. भजन 104 कुल पद 35। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर की नाई ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है, ताकि वह कभी ना डगमगाए।
तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है, जैसे वस्त्र से जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया। तेरी घुड़की से वह भाग गया, तेरे गर्जने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। वह पहाड़ों पर चढ़ गया और तराइयों के मार्ग से उस स्थान में उतर गया जिसे तूने उसके लिए तैयार किया है। तूने एक सिवाना ठहराया जिसको वह नहीं लांघ सकता है और ना फिरकर स्थल को ढांप सकता है। तू नालों में सोतों को बहाता है, वे पहाड़ों के बीच से बहते हैं। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। उनके पास आकाश के पक्षी बसेरा करते और डालियों के बीच में से बोलते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तुएं उत्पन्न करता है, और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। यहोवा के वृक्ष तृप्त रहते हैं, अर्थात लबानोन के देवदार जो उसी के लगाए हुए हैं। उनमें चिड़ियाँ अपने घोंसले बनाती हैं। लगलग का बसेरा सनौवर के वृक्षों में होता है। ऊंचे पहाड़ जंगली बकरों के लिए है, और चट्टानें शापानों के शरण स्थान हैं। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। तू अंधकार करता है तब रात हो जाती है, जिसमें वन के सब जीव जंतु घूमते फिरते हैं। जवान सिंह अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं। सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांदों में जा बैठते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। हे यहोवा, तेरे नाम अनगिनत हैं। इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है। पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है, और उसमें अनगिनत जलचरी जीव जंतु, क्या छोटे क्या बड़े, भरे पड़े हैं। उसमें जहाज भी आते जाते हैं, और लेबतान भी, जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं, और तू धरती को नया कर देता है। यहोवा की महिमा, यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे। यहोवा अपने कामों से आनंदित होवे। उसकी दृष्टि ही से पृथ्वी कांप उठती है, और उसके छूते ही पहाड़ों से धुआं निकलता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूँगा। पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को ना रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, याह की स्तुति करो। यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ आज
मसीह हमारे हैं संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह हमारे हैं संग, कोई नहीं तेरे बिन। तो आओ मिलकर हम सब गाए, तो आओ मिलकर हम सब नाचे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा हुए मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। बजाओ और ताली बजाओ, झूमो और नाचो और आवाज उठाओ।
आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा हुए, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया कभी कम ना होगी। तेरी दया, दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजाता तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय को खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला। रखता ना तू मेरे पापों का हिसाब, अनजाता तुझसे तब भी किया तूने प्यार। मेरा हृदय कोने है खोला, गुनाहों में कभी तूने ना तोला। जैसा भी मैं था मुझे अपना
तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पे। ओ तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पे। आराधना आराधना प्रियो एक साथ। ओ आराधना आराधना। सभी लोग जहाँ पर बैठे हैं अपने हाथ को उठाएं और बोले आराधना। ओ आराधना। स्वर्गीय पिता तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना हालेलुया ओ हालेलुया। तेरे सिवा कोई नहीं, आसमां पे या धरती पर तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। ओ तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। ओ तेरे सिवा, चर्च बोले यीशु सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य यीशु समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना ओ आराधना हालेलुया। चलिए से एक साथ हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय हो। यीशु महान है, उसकी आराधना में ही हमारा जीवन है। वो है तो हम हैं, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे सिवा कोई नहीं, यस लॉर्ड, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। ये बात आप बोल रहे हैं तो बोले प्रभु मैं अंगीकार करता हूं कि पृथ्वी, स्वर्ग
तीनों लोक में परमेश्वर कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया है जो नाम से हर घुटना टेकेगा, हर जबान कबूल करेगी कि यीशु ही मसीह है, बचाने वाला, उद्धार देने वाला। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। So church, again this week we greet you in the name of Jesus. और कलीसिया फिर से इस हफ्ता हम आपको यीशु के नाम से हम आपको अभिनंदन कहते हैं। And we would like to remind you about और हम आपको ये बात ध्यान देना चाहते हैं। from last 7 weeks we've been celebrating hills and valleys. और हम लगातार 7 हफ्ते जो हिल्स एंड वैलीज के जो प्रोजेक्ट जो इवेंट को हम मना रहे We हैं। did some hills prayers and going through mountains and valleys. और हम पहाड़ियों में गए, प्रार्थना किए, पति पत्नियों को पहाड़ियों पर लेकर गए And और रात के प्रार्थना को किए। We've been sharing word with youngsters in the nearly like some 3-4 mountains we had taken them. और हम जवान लोग के साथ भी वचनों के द्वारा बातें किए, उनको भी पहाड़ के ऊपर लेकर जाकर And, वचन को बांटे। Again this morning, I mean this is actually we are recording evening, but you know as you come to evening Sunday church, और ये शाम का समय है, हम जब इस सर्विस को रिकॉर्ड कर रहे हैं And ताकि then- आप सभी लोग शाम को देख सके। and this is so good, we are going to celebrate this last 8 week, और हम ये 8 हफ्ता हम जश्न मनाएंगे। and this 8th week we are going to celebrate taking couples retreat and youngsters retreat. और ये 8 हफ्ते हम जो पति पत्नी हैं उनको हम This रिट्रीट is में next लेके coming जाएंगे। week is और 8th जवान week. लोग को भी हम रिट्रीट में लेकर जाएंगे। Coming week is 8th week. और जो आने वाले हफ्ता जो है वो 8वां हफ्ता है। I would desire that most of our couples should come for this retreat. और मैं इच्छा करता हूँ कि बहुत से दंपतियाँ जो है वो इस रिट्रीट में आए And more of youngsters should attend this. और बहुत से जवान जो है इस रिट्रीट में आए। We are going to सहभागिता have करें। lot of question and answers, discussing, interviews, celebration, dancing, praying. और हम बहुत से क्विज को रखेंगे जहाँ पर हम प्रश्न उत्तर को पूछेंगे, डांस रहेगा और बहुत से अच्छे कार्यक्रम भी हम रख रहे हैं। Prizes are going to be distributed. Those who had already answered some of the questions in the hills side when we taken some question and answer thing. और जब हम पहाड़ियों पर कुछ लोगों को लेकर गए तो उन्होंने कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया, तो उनको भी हम कुछ भेंट देना चाहते हैं। So I just want to thank Merlin also because she's been doing so good in this whole weeks. You know, we've been together. We've been doing all this. और ये पूरा जो हम माउंट हिल्स एंड वैलीज के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद हो सिस्टर मर्लिन के लिए जो हम साथ में मिलकर ये पूरे कार्यक्रम को साथ में किए। She's been taking a lot of efforts and we've been planning. And coming week, actually, we have some surprises for you. We are going to celebrate a little bit about tabernacles. और आने वाले दिनों में हम कुछ सरप्राइजेस भी रखे हैं। हम ये तंबू के जो पर्व के उस त्योहार को भी हम So we मनाने are going का to pray intercession prayers inside these booths. और हम मध्यस्थी के प्रार्थना को करेंगे। हम इस तंबुओं को बना रहे हैं ताकि हम तंबू के अंदर बैठकर प्रार्थनाओं को कर So every सकें। day we are going to pray for more than an hour sitting in this tambu or tabernacle or a booth. और हम 1 घंटे से भी ज़्यादा इस तंबू में बैठकर हम प्रार्थना करेंगे। And we are going to build a small booth. और हम सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा तंबू के जैसा बनाए। And each day we are going to have prayers, intercession prayers for everybody. And this is going to be powerful because me and Merlin and other leaders, we are going to pray together in that tambu booth. क्योंकि हम सोच रहे हैं कि मैं और मेरलिन सिस्टर और बहुत से हमारे जो लीडर्स हैं वहाँ पर बैठकर
एक से भी ज्यादा घंटे So हम I प्रार्थना would करेंगे। request all the church people and those who are watching abroad also, I would like you to send your prayer requests. We are going to pray and see the anointing of God breaks the yokes of the devil from your lives and our lives. और हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं जो भी हमें देख रहे हैं, हमारे कलीसिया के लोग हो या बाहर विदेश के लोग हो, हम इच्छा करते हैं कि आप आपके प्रार्थना विनंतियों को हमें भेजिए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके, परमेश्वर के चमत्कार आपके जीवन में हम देख सकें। Amen. Hallelujah. Let's pray for the word today. आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, we thank you for this word. अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद And देते I हैं। believe today again you have given some prophetic promises for me. और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के दिन भी कुछ भविष्यवाणी की बातें आपने मुझे दिया है। And so that Lord, even I may release the prophetic word this Sunday. और ताकि इस रविवार को फिर से कुछ भविष्यवाणी के वचन को मैं बोल सकूं, घोषणा कर सकूं। Amen. Praise the Lord. Amen. And the Bible says in Genesis chapter 8. और बाइबल कहता है उत्पत्ति का 8वां See, अध्याय। next week we are going to get into the celebration of hills and valleys into the 8th week. और आने वाले हफ्ते जो 8वां हफ्ता हमको लगेगा, हम यहाँ इसमें हम हिल्स एंड वैलीज के इस जश्न को हम I tell मनाने you, जा God रहे is हैं। telling me about number 8. और परमेश्वर मुझे 8वां अंक के बारे में कह रहा है। 8 is something like after 7 completes. और 8 का मतलब है जब 7 नंबर आता है या अंक आता है, इसका मतलब है कि See, according to the समाप्ति। Bible, 7 means completion. और बाइबल का हिसाब से 7 मतलब कंप्लीशन। And then the number 8 is the beginning. और 8वां जो अंक है वो है शुरुआत। All of the Bible, पूरे बाइबल में lot of times, बहुत से बार the number 8 worked in different ways. और 8वां जो अंक है वो अलग अलग प्रकार में वो कार्य किया। If you see the Greek name Jesus, और अगर आप ग्रीक भाषा में यीशु के नाम को अगर आप देखेंगे, even the letters has 8. और उसमें भी 8 अंक है, Even 8 Elijah शब्द है। and Elisha did 8 miracles. और एलाइजा एलीशा ने भी 8 चमत्कार को किए। You see Genesis, Abraham had 8 covenants from the Lord. और आप देखते हैं उत्पत्ति और निर्गम 8 जो परमेश्वर के वाचा को Abraham had 8 covenants from God. और अब्राहम को 8 वाचा मिला था परमेश्वर Even की ओर। the Feast of Tabernacles or Feast of Booths, और जो इस तंबू के जश्न या तंबू के त्योहार को हम मनाते हैं, they celebrated almost 8 days in the Bible. और बाइबल में वो 8 दिन इस त्योहार को मनाते हैं। So you see 8 is something beginning, it talks of beginning. और 8 जो है वो शुरुआत के बारे में बताती है। This is what it talks about starting again in your life. और इसका मतलब ये बताती है फिर से आपके जीवन में एक नया शुरुआत। So we'll take it 7 plus 1. और हम लेंगे 7 और 1। When you add it, जब आप इसको गुणवंत करेंगे it becomes 8. वो 8 हो जाता है। So very soon, those who are watching me, और बहुत जल्द जो कोई हमें देख रहे हैं, and I believe as 7 is completing in your life, believe that whatever happened in your life, maybe it was bad or maybe it was evil, whatever it happened is going to get finished. God is giving you a new start. और मैं विश्वास करता हूँ और मैं बोलना चाहता हूँ कि 7 + 1 यानी 8 होता है। तो अब तक जो भी आपके जीवन में बुराई हुई, जो भी शैतान ने कुछ भी किया रहेगा, आपको ऐसा लगा रहेगा कि समाप्त है, लेकिन आज आपको एक नई आशा को हम देना चाहते हैं, This एक नई week, 8th शुरुआत। week, this 8th week, as we are going to pray in booths, I believe even, I see many open doors you see in your jobs, even in your finances this week. और ये हफ्ते में जब हम उस तंबू में बैठकर हम प्रार्थना करेंगे, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग के जीवन में बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत से जो पैसों की तंगियां हैं वो भी चला जाएगा और परमेश्वर आपके पैसों में आशीष को You are देगा। going to get new opportunities. Just remember this. You are going to get new open doors, new opportunities this 8th week. और परमेश्वर आपको नए जिम्मेदारी, नए अपॉर्चुनिटीज को देंगे ये पूरे Even हफ्ते में। Noah had 8 numbers in his family. और नूह को भी उसके परिवार में 8 जन थे।
So Noah came out of the ark और नूह जब उस जहाज से बाहर आए with 8 people, आठ dry land. लोगों के साथ वो सूखी भूमि पर वो 8 जन बाहर आए। So that's what the Bible says in Genesis 8. See again, Genesis 8. What is 8? और इसीलिए बाइबल कहती है उत्पत्ति 8। You know, 8. Genesis 8. Every chapter in the Bible is prophetically number. It's been kept prophetically. Maybe it is 1 chapter, 2 or 3. Whatever the incident has been written, it has something to do with numerologically. और जो भी उत्पत्ति 8 में या जो भी होता है ये सब भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने इस अंक को लिखा गया है, See, रखा गया है। 8 chapter only talks about the flood ends, and then Noah and his family, 8 people, they come out of the ark and they land on the dry ground. और And then you see Noah starts a new beginning. और नूह के साथ भी वो 8 जन अंदर जाते हैं, लेकिन वो वापस 8 जन साथ में सूखी भूमि में वो फिर से लौट कर आते Let's हैं। see 8 chapter verse 1 says, और उत्पत्ति का 8वां अध्याय पहला वचन but कहता God है, did not forget about Noah. और परमेश्वर ने नूह के बारे में वो भूला नहीं, God remembered him, परमेश्वर ने उसको याद रखा and with him और उसके साथ all the animals वो हर एक उसके जानवर that were with him जो भी उसके साथ in थे, the ark, in the boat. जो भी बोट उस जहाज में थे। And the Bible says, और बाइबल कहती God है made a wind blow over the earth, और परमेश्वर ने एक हवा को, एक तूफान को and इस all the पृथ्वी के waters ऊपर, began to disappear. जब वो उस हवा उस पृथ्वी के ऊपर आ गई तो पूरा जो पृथ्वी है वो सूख गई। So this is good news for you. तो ये आपके लिए एक अच्छा खबर है। As you believe, और जैसे आप विश्वास as you're करते हो entering into a new phase of your life, और जैसे आप आपके जीवन के नए तरीके में आप आ रहे even we हैं, as a family, और जैसे हम एक परिवार होने as के Hallelujah नाते, Church, हालेलुया कलीसिया, the whole families, पूरा कलीसिया, hello, let every tears in your life be gone. देखिए हर एक आपके आंसू, आपके जीवन के जो भी आंसू है वो चले Let जाए every sickness be healed in Jesus' और name. हर एक बीमारी यीशु के नाम से चंगा हो जाए Step out for the new era. और एक नई बात के लिए, एक नई आशा के लिए आप अपने कदम को उठाइए A new thing God is going to make in और your life. परमेश्वर एक नई जीवन, एक नई योजना आपके जीवन में लेकर Behold, आना the Bible चाहता है। says, behold, I make new. और बाइबल कहती है देखो मैं कुछ नया बात को बना रहा हूँ, All things new. सब कुछ नया। So, be ready. तो इसीलिए तैयार हो The जाओ। Bible says, बाइबल कहती है God's going to bring a blow, a wind blow. और परमेश्वर एक हवा को लेकर आएगा And all your tears, all your struggles, very soon, as you believe in this word, you're going to see it's going to be wiped out. It's going to be finished. बहुत जल्द आपके आंसू, आपके तकलीफ, आपके दर्द जो भी है वो बहुत जल्द वो सब परमेश्वर अपने हवा को भेज Even कर the उसको निकाल demonic देगा। oppressions will leave you in the name of और Jesus. जो भी शैतान के जो जकड़न है या शैतान के जो भी योजना आपके जीवन में हो रहा है वो सब कुछ यीशु के नाम से निकल And जाएगा। now the rain stopped falling from the sky, the Bible says. और बाइबल कहती है जो बारिश जो होना बंद हुआ And water stopped flowing from under the earth. और जो पानी भी पृथ्वी के ऊपर से बहना बंद हो गया। Praise the Lord. So this is what the Bible says. और बाइबल कहती है And verse 7, और 7वां वचन 40 days later, 40 दिन के बाद Noah opened the window. नूह ने खिड़की को खोला। You see, Noah, if you read the whole chapter again and again, in the meantime, after 7 days, he did something new. और जैसे आप बाइबल को देखेंगे 7 दिन के बाद में नूह कुछ नए नए कार्य को किया। And he opened window also here again. और यहाँ पर वचन कहता है कि वो खिड़की को खोला That was also after 7 days, 8th day. और वो भी 7वां दिन के बाद And 8वां दिन now को verse खोला। 8 says, और 8वां वचन कहता है Noah sent out a dove. और नूह एक डव को भेजा He wanted it to find dry ground. और वो चाहता था कि वो कबूतर या डव जो है वो कुछ सूखी भूमि को देख सके। Dove signifies Holy Spirit. और जो कबूतर है
वो पवित्र आत्मा को You दर्शाता है। see, 8th day, 8th week, 8th number. 8 दिन, 8 हफ्ता, 8वां तारीख। You see, 18th Sunday today. I mean, as you're going to hear this message on 18th. और आज 18 तारीख जो रविवार है, आप इस वचन को सुनने जा रहे हैं। You see, thou Holy Spirit will move upon your lives, will go forward to make the ways clear. He may find what is good, what is evil. He's planning, he's going out, he's searching. और जो पवित्र आत्मा है, जो कबूतर है, वो आपके जीवन के ऊपर आएगा, हर एक बुराई, हर एक दर्द, हर एक परेशानी को निकालेगा। The Lord will send His Holy Spirit. और परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को The भेजेगा। Bible says in the book of Acts, और बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में, as they were gathering together, जैसे वो सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो गए descended upon them. और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ They were गया waiting and praying in the house, upper और house. वो ऊपर के कमरे में बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे। This week we are going to pray और in booth. ये हफ्ता हम उस तंबू में जाकर हम प्रार्थना In करेंगे tabernacles, 8 days complete. और इस तंबू में हम जाकर हम प्रार्थना करेंगे Oh, we want to see लगातार। restorations and revival is going to take place. और हम देखना चाहते हैं पुनरुत्थान और प्रकाशन या प्रकटीकरण हमारे जीवनों में। Jesus rose again on the 3rd day. That was 8th day. और- All 7 days was completed, and it was 8th day the resurrection took place. और यीशु जब जीवित हुआ वो 8वां दिन था और तब तक पुनरुत्थान सब समाप्त हो गया था। Praise the Lord. प्रेज द The लॉर्ड। Bible says in 18 verse. और बाइबल कहते हैं 18 वचन So में, Noah went out और नूह बाहर गया with his sons, उसके बेटों के साथ, his wife and his sons, उसके पत्नी और बेटों के and साथ sons' wives. और उनके बेटों के पत्नियों के So साथ। you see, the Bible says बाइबल कहती है all the animals came out of the boat in the और family groups. पूरा जो जानवर था वो सब जहाज से बाहर आने Noah लगे with his family group. और नूह अपने परिवार के साथ आया Animals with their family groups. और जो जानवर थे वो अपने परिवार के साथ बाहर They all आए। came out. वो सब बाहर आ Now गए this is time. और ये समय है। Not only you, सिर्फ आप नहीं, not only you, सिर्फ आप नहीं, but whole of your family. लेकिन आपका पूरा Take the परिवार prophetic word ये भविष्यवाणी ले लीजिए out बाहर of lockdown. हर इस लॉकडाउन के बाहर Lockdown of the evil one. और जो बुराई जो लॉकडाउन को लेकर Lockdown आया in the है sickness. और जो बीमारी जो लॉकडाउन को Lockdown in लेकर आया demonic है oppressions. और शैतान जो बंधन को इस लॉकडाउन में You लेकर have आया to come है, out of the lockdown. आपको इस लॉकडाउन से बाहर आना है। Noah and the animals and his sons and wives, they were locked down in the boat. और जो नूह उसके बेटे उसके पत्नी उसके जानवर सब लोग उस बोट के अंदर वो लॉक हो The time is coming. बंद हुए थे। The time is coming. अब समय आ रहा है All of your family. आपके पूरे परिवार के We are going साथ to come out आपको बाहर and आना see the है dry land. और आपको सूखी भूमि को And देखना new है thing is going to start. और एक नई बातें वो शुरुआत 8th हो रहा number. है। 8वां New beginning. नई शुरुआत, Again starting point. फिर से शुरुआत, No matter what happened so far. चाहे कुछ भी हो जाए अब Church, तक, कलीसिया, you families, आप परिवार, you youngsters, आप जो rise जवान up, हैं, फिर से rise उठिए, up, फिर से and let's उठिए start और हम शुरुआत करें a new beginning. एक नया शुरुआत, New beginning for एक नया Jesus. शुरुआत यीशु के New लिए, beginning for your families. आपके परिवार के लिए एक नया शुरुआत, Hallelujah. Hallelujah. New businesses. एक नया व्यापार, New jobs. नया काम। Oh, God is good. परमेश्वर भला Oh, है। praise God and clap your hands अपने where you are परमेश्वर sitting. को धन्यवाद कीजिए और The ताली Lord will बजाइए visit जहाँ भी you. आप The हैं। Lord will visit you. और जहाँ भी आप है परमेश्वर आकर Feast आपको of Tabernacles. मिलकर The जाएगा। Feast of Tabernacles. जो हम तंबू के इस त्योहार को That shows मनाते the हैं upper room where the disciples were praying. और ये बताती है कि जब ऊपर के कमरे में जो चेले प्रार्थना कर And रहे as they थे were waiting, और जैसे रुके हुए oh, the थे thou Holy Spirit, और जो पवित्र आत्मा oh, descended upon the वो उन disciples. लोगों के ऊपर चेले के ऊपर आ And the 120 people, those who gathered. और 120 जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। Oh, this is Holy Spirit time. ये पवित्र आत्मा का समय है, Refreshing time. ये एक ताजा होने का Regaining समय है। time. फिर से एक नया ताकत को पाने Regaining का your समय है। strength. आपके ताकत को फिर से नया Restoration time. एक पुनरुत्थान का समय है।
Hallelujah. And the हालेलुया। Bible says, और बाइबल the कहती Lord है, smelled these sacrifices और जब परमेश्वर ने इस भेंट को सूंघा and it pleased him और वो परमेश्वर खुश हो गया, because Noah honored God. क्योंकि नूह परमेश्वर की आदर किया। See, everything happens when you honor God. देखो, सब कुछ होता है जब आप परमेश्वर की आदर करते हो। See, all the verses when you read from 1 to 20, अगर आप पूरा अध्याय को पढ़ेंगे 1 से 20 तक, it never says that God was pleased. और उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर खुश था। But as you read 20 and 21, अगर आप 20 और 21 वचन को आप the Bible पढ़ेंगे, says बाइबल कहती है God received the sacrifices of Noah. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने नूह के बलिदान को स्वीकार किया। Noah took some of all the clean birds और नूह जो अच्छे जो शुद्ध पक्षी थे उसको लिया, and some of all clean animals और हर जो शुद्ध जानवर था उनको लिया, and burned them on the altar as a gift to God. और वो उस वेदी के ऊपर परमेश्वर की ओर चढ़ा दिया कि Hallelujah, praise the परमेश्वर, Lord. ये मेरे तरफ से आपके लिए एक तोहफा। Bait hai, amen. So listen to me. And then the Bible says, और फिर बाइबल कहती the है, Lord smelled these sacrifices और जब परमेश्वर ने इस बलिदान का खुशबू को लिया and it pleased him. और वो खुश हुआ, And Lord said to और himself, परमेश्वर अपने आप से कहा, never again I'll curse the earth. मैं फिर कभी इस पृथ्वी को श्राप नहीं दूंगा। Dear church, प्रिय dear कलीसिया, children of God, प्रिय परमेश्वर listen के to me. संतान, Listen to me. सुनिए, What does your sacrifice do? आपका बलिदान क्या करता The है? sacrifices brings your gift to God, brings promises in your life. और जब आप परमेश्वर को Hallelujah. बलिदान करते हैं, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का जो वाचा है वो आपके जीवन में This लेकर October आता है। month, इस अक्टूबर के महीने में, you know, I just read all the Jewish customs, everything, their festival. और इस यहूदियों के पूरे जो त्योहार है उनके तौर तरीके सब मैं October पढ़ रहा was the था, month where they were celebrating the Feast of Tabernacles. और अक्टूबर का वो महीना है जब वो उस तंबू के पर्व के उस त्योहार को मनाते हैं। And you see, I never knew about all this much. और देखिए, October. ये सब मुझे नहीं पता था, Then as I was reading today, और जैसे आज मैं पढ़ाई कर रहा I था saw September to October, और मैंने देखा सितंबर से they अक्टूबर have तक, some days of celebrating feast. और उनके पास कुछ तारीख है ताकि So वो church be उस ready next त्योहार week. को मना सके। Church be ready next week. We are going to celebrate 8th week of Hills and Valleys. और कलीसिया तैयार रहो, हम अगले हफ्ते 8वां हफ्ते हम हिल्स एंड वैलीज के And I त्योहार को want you all to मनाएंगे। bring sacrifices, bring sacrificial gift to the Lord because you're going to receive the promises of और God. मैं चाहता हूँ कि जब भी आप आए उस वो हफ्ते में आप खुद बलिदानों को भेंट को लेकर आए। And I desire that you may give the best gift this week. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये हफ्ता अच्छे तोहफे को, अच्छे Not small भेंट gift, को लेकर not आए। small gift. छोटा तोहफा नहीं, छोटा भेंट Think about नहीं, big gift. बड़े वरदान, बड़े भेंट के बारे में Come to सोचें। the tabernacle where we design the tabernacle. और आइए जहाँ पर हम उस तंबू को हम बनाएंगे, तंबू को अच्छे You से come there and डिजाइन करेंगे, you give it to the Lord there. और वहाँ पर आप आइए और परमेश्वर को I want to दीजिए। welcome you all. और मैं आप सभी को स्वागत करना Come चाहता हूँ, please आइएगा जरूर, and bring sacrifices. और परमेश्वर के लिए बलिदान Not को necessarily लेकर आइए। that it is not compulsory. और ये ऐसा नहीं कि आपको कुछ हट है कि आपको लेकर ही आना No, है। it's not like. But I'll tell you, if you pray and if God speaks to your heart, I'll tell you these are the days of promises. I believe that the Bible says, as Noah honored God, और ये आपके ऊपर है, आप प्रार्थना कीजिए, अगर परमेश्वर आपके हृदय में कुछ डालता है तभी आप आगे बढ़िए। because the Bible says, then Noah built an altar to honor the Lord. और बाइबल कहता है फिर नूह ने एक वेदी को बनाया और वहां पर परमेश्वर की आराधना की। Hallelujah. Noah built an ark. और Built and he built an sacrificial altar. और नूह Sorry. ने एक वेदी को बनाया और वहां पर वो बलिदान पूर्वक हर एक बातों को किया। And that's where the Bible says, और यही बाइबल कहती है, Noah and his children, नूह और उसके बच्चे, they got the promise from God. और परमेश्वर की ओर से उनको वाग्दान मिला। And even, again we see the last verse. अगर आप आखिरी वचन को आप देखेंगे, The Bible says there will always be cold
and hot, summer and winter, day and night on earth. और वचन कहता है वहाँ पर ठंडी रहेगा, गर्म रहेगा, गर्मी के दिन रहेगा, ठंडी के दिन रहेगा, God- रात और दिन रहेगा। God did not change anything, परमेश्वर ने कुछ बदला नहीं किया, but He changed something लेकिन उसने कुछ चीजों को बदला for Noah किया। and his children. नूह और उसके बच्चों के It's a लिए। new day, it's a new age, it's a new time, it's a new beginning. परमेश्वर ने नूह के लिए हर एक नया दिन, नई शुरुआत, नया समय को रखा। So new beginning, new timings are going to start in your life. और आपके जीवन में नई समय, नया शुरुआत आपके जीवन में होने वाला है। It's like normal again. Things will be not abnormal. और ये फिर से साधारण जैसे ही हर समय का जैसा होगा, कुछ ऐसा As नहीं God होगा। blessed Noah, और जैसा परमेश्वर ने नूह को आशीष दिया, may as you hear this message, और जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, receive the anointing of God. और परमेश्वर के उस वरदान को आप स्वीकार कीजिए, Receive God's goodness in your और life. परमेश्वर की अच्छाई आपके जीवन में स्वीकार कीजिए। And I want everything should be normal, not abnormal in your family. मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ सामान रीति से बने रहे, कोई Dear- भी असामान्य बात न Dear रहे। church, many times I saw God's hand on my life. और प्रिय कलीसिया, मैंने देखा परमेश्वर के हाथ मेरे ऊपर, Every time I felt it is finished, और कभी भी मुझे ऐसा लगा कि ये समाप्त हो गया, God brought new beginning in my और life. परमेश्वर ने मेरे जीवन में नई शुरुआत को Oh, लेकर, there are more than 20 to 25 testimonies I have. और 20 या 25 से भी ज्यादा ऐसा गवाही मेरे पास I'll tell you, रहेगा। Marilyn and I have both. We have experienced it. और मैं और मेरलिन हम दोनों इन बातों को अनुभव More किए than हैं। 20 to 25 times. और 20 से 25 ऐसे गवाही रहेगा। We started new beginnings. हम फिर से नया शुरुआत को In the किया। family, in the church, in the ministry. परिवार हो या सेवकाई में हो या And this is कलीसिया my में हो। prayer. और ये मेरी From प्रार्थना है। Father God, give them new और beginnings. पिता परमेश्वर इन्हें नया शुरुआत को देना, And let the love of God और परमेश्वर का प्रेम and the fellowship of Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता and our grace from Lord Jesus Christ और यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर be अनुग्रह descended whole week. और ये पूरा हफ्ता हम सभी के ऊपर As we रहे। continue to seek the Lord, pray, fast, celebrate with food and all celebrations, और God जैसे- be with us in Jesus' name. और जैसे हम इस हफ्ते पूरा हम प्रार्थना में, उत्सव में, खाने में, हम प्रार्थना में, उपवास में हम करते रहेंगे। परमेश्वर आप हमारे साथ रहना। Amen. आमीन। Praise God. God bless.